हेलो एंड वेलकम। ये इस सीरीज़ का शायद लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। हम लोग देखा था व्हाट इज़ कंजंक्शन और व्हाट इज़ डिसजंक्शन, और बाद में देखा था कि उसका निगेशन कैसे करते हैं। और हमने अंत में एक सवाल दिया था और ये कहा था कि आपको उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में डालना है। हमारी एक स्टूडेंट ने, जो जिनका नाम आकांक्षा पटेल है, उन्होंने इसका सही जवाब डाला था। बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन आकांक्षा। और ये सिंपल हम लोग देखा था कि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है। द निगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज द कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ P and negation of Q, and this was the formula. Negation, put the sign of negation, and then this is the sign of disjunction. So P disjunction Q will be equal to negation of P, और उसके बाद conjunction negation of Q. This was the set formula for negation of disjunction, and the sentence was P. It was P. There was two sentences. P, that was 35 is a prime number, and sentence Q, it was 35 is a composite number. This was the sentence. Two sentences rather. These were the sentences. P, 35 is a prime number, and the Q was 35 is a composite number. पहले इसको निगेट करेंगे इन सेंटेंस को इंडिविजुअली. सो निगेशन ऑफ P विल बी P. Negation of P will be 35 is not a prime number, and negation of Q will be 35 is not a composite number. So first of all, we have negated the sentence to both the sentences, and then we will write the negation of this. That will be P, और हम लोग निगेशन का साइन कैसे डालते हैं? Q. डिसजंक्शन के केस में that will be 35 is not a prime number, or 35 is not a composite number. This is the negation of this disjunction. 35 is not a prime number, or see, when the sentence of disjunction is there we see or. 35 is not a composite number. But what we have to do here, we don't have to write this way, rather we have to, because negation of P, conjunction negation of Q. So, and what we do, when we will convert the or into and, it will be the conjunction of negation of disjunction, because we have already written the negation of disjunction is the conjunction of negation of P and negation of Q. So if or is here, it is disjunction. So in place of or, we will write and that will be the final answer. So let's see how we write. I'm just rubbing this. So what we write? This would be negation of P, negation of Q. This is the formula finally. So what we'll write here, this is the way. So we'll write 35, और यहां से लिख सकते हैं 35 is not a prime number. In place of or we'll write and. 35 is not a composite number. So this was the answer, and as I have told you, आकांक्षा पटेल ने सही जवाब दिया है. Congratulations आकांक्षा वंस अगेन. इसी तरह से आप सही जवाब देते रहिए, हम आपका नाम अपने वीडियोस में लेते रहेंगे और आपको अच्छा रहेगा. इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशंस, या इसको हम लोग हिंदी में अंतर्भाव कहते हैं. इम्प्लीकेशंस देखेंगे हम लोग. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज. There are two types of statements, conditional and biconditionals. So this we have done. I'm just rubbing it and we'll start a new topic today, that is implications और अंतर्भाव. और ये शायद इस टॉपिक का जो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक्स, उसका ये आखिरी पार्ट है. उस आखिरी पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं इम्प्लीकेशंस, और इसको हम लोग हिंदी में अंतर्भाव कहते हैं.
So there are two types of sentences or statement you can say. One is conditional statement और दूसरा है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? इफ P देन Q, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा. दिस इज सो ऐसा होने के लिए ऐसा एक कंडीशन चाहिए, इसीलिए जो जो सेंटेंस इस पैटर्न पे होता है उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं. इफ इसका फॉर्मेट होता है इफ P देन Q, अगर P होगा तो Q होगा. ये इस तरह के सेंटेंस कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाते हैं. और सबसे अच्छी बात ये बताएं एक बात और, कि इसमें P पार्ट जो होता है वो हाइपोथेसिस कहलाता है, हाइपोथेसिस, एंड Q पार्ट कंक्लूजन कहलाता है. सो हमेशा याद रखिएगा, इफ P देन Q पैटर्न पे अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, और उसमें P पार्ट को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं और Q पार्ट को कंक्लूजन कहते हैं. एक दो सेंटेंसेस लेके देखते हैं. देखिए, इफ 2x प्लस, सपोज करें एक सेंटेंस ले रहे हैं, इफ 2x प्लस 6 इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 7. इट्स वेरी क्लियर. अगर 2x प्लस 6 इक्वल टू 20 है तो x इक्वल टू 7 है, और हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 6 इक्वल टू 14 प्लस 6 इक्वल टू 20. तो ये कंडीशन है. 20 होने के लिए जरूरी है कि x का मान 7 हो या x का वैल्यू 7 हो. तो इस तरह के स्टेटमेंट. एक और सेंटेंस लेते हैं, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, मतलब मेरा बाहर जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि बारिश नहीं हो रही है. इफ P देन Q, अगर बारिश हो रही होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट. और एक और देख लेते हैं, यदि, हिंदी में लिख लेते हैं इसको, यदि x इक्वल टू 4 देन x स्क्वायर इक्वल टू 16. अगर x का वैल्यू 4 है तो x स्क्वायर 16 होगा. आप सब में देखिए, इफ P देन Q के पैटर्न पे ये सेंटेंस है, और ऐसे स्टेटमेंट्स को, ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं. हम लोग आगे चल के देखेंगे इसको भी कैसे निगेट करते हैं. तो ये, और एक बात और, इफ P देन Q, जिस तरह से हम लोग स्टेटमेंट को और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, दिस इज द वे. और हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डबल लाइन देके ऐसे और बना के Q. P, if P then Q, if P then Q, both the ways you can write, single arrow or single arrow but with two lines. Both are the ways to write the conditional statement. So if we write this way, but we cannot do Q arrow P, the meaning will be changed, as we have seen in case of disjunction and conjunction, where we can change. Suppose it is written P conjunction Q, or so we can write Q conjunction P and there was no change in the meaning. Or suppose P disjunction Q, or you write Q disjunction P, there was no change at all, but here there will be a change in the meaning. So we cannot write, we have to write P Q, not Q P. So this you should not, as we have done in the conjunction and disjunction, you should not do it here, because here if we do that the meaning will be changed. Is it okay? So now you see, we'll see how. So if this sort of sentences are there, if conditional statements are there, we can change it in 3 different ways. The first one is called inverse of the sentence. How can we do this? Inverse statement को हम लोग हिंदी में विरोध कथन कहते हैं. इनवर्स स्टेटमेंट, विरोध कथन. और उसके बाद एक और तरीका है इसको उलट देने का, वो है कन्वर्स स्टेटमेंट, जिसको हम लोग विलोम कथन कहेंगे. कन्वर्स, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे. उसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, प्रतिधनात्मक कथन. ये 3 तरीके के हैं जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि हम निगेट कर सकते हैं. पहले हम लोग देखेंगे इनवर्स, फिर कन्वर्स,
और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और इनवर्स स्टेटमेंट को जैसा कि मैंने बताया विरोध कथन कहेंगे, कन्वर्स स्टेटमेंट को हम लोग विलोम कथन कहेंगे और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम लोग प्रतिधनात्मक कथन कहेंगे। तो अब एक एक करके देख लेते हैं ये क्या है। First of all, we will see inverse statements. Inverse statement विरोध कथन। अच्छे समझिए इसको। इनवर्स कथन या विरोध कथन, यदि P, इसका पैटर्न है, यदि P नहीं तो Q नहीं, इसी पैटर्न पे होता है। इफ P नॉट देन Q नॉट, इसको लिखते हैं P नहीं देन Q नहीं। दिस इज द पैटर्न। ये P होता है और P का निगेट क्या होता है, ये साइन डालते हैं। तो इफ दिस निगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q, या इसको हिंदी में कहें यदि P नहीं तो Q नहीं। सो ऑपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। P Q डालते हैं हम लोग, आप लोग देखा है हम लोग स्टेटमेंट को डालते हैं ऐसे, इसका निगेट करते हैं या ये इसका विरोध कथन लिखते हैं, तो लिखते हैं यदि P नहीं तो Q नहीं। अब हम लोग इसको क्यों नहीं, ये सवाल नहीं किया जा रहा है क्यों नहीं, क्यों इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है, आप ये नहीं पूछेगा क्यों नहीं, ये बात नहीं है कि क्यों नहीं बोला जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अगर P नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सपोज करें एक एग्जांपल लेते हैं, इफ ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल। एक स्टेटमेंट लिया हम लोगों ने, क्या है, इफ ABC is an equilateral triangle then all the sides of triangle ABC are equal, that we all know very clearly। इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट जो लिखेंगे या इसका कहें इसका जो इनवर्स लिखेंगे विरोध कथन में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे, हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद इसका विरोध देखेंगे हम लोग। इफ ABC is if ABC is an equilateral triangle then all the sides of triangle ABC are equal। These are sentence very simple and with that we all know। अगर किसी त्रिभुज के तीनों साइड्स इक्वल है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ ट्रायंगल ABC इज नॉट इक्विलैटरल then all the sides of the triangle is not equal। This is the way। If triangle ABC is not equilateral then all the sides of triangle ABC, you can put it here also, triangle ABC is not equal। If this is not, this is not, ये हम लोग देख चुके हैं, if P not Q not, अगर ऐसा P नहीं होगा तो Q भी नहीं होगा। पहले हमने बताया कि P ये है Q ये है। If ABC is an angle, is an equilateral triangle, then all the sides of triangle ABC are equal। इसको हम लोग उलट देंगे, इसका इनवर्स करेंगे, if triangle ABC is not an equilateral triangle then all the sides of the triangle ABC is not equal। This is the way we inverse the statement। if, और इसका पैटर्न रहेगा, यदि P नहीं तो Q नहीं, if negation of P then negation of Q will be there। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सपोज सेम सेंटेंस लेते हैं, यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं बाहर, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इसका विरोध कथन हो जाएगा या इनवर्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यदि वर्षा नहीं होती है तो मैं बाहर जाऊंगा। दोनों चीजें उलट गई। पहले में क्या था, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा,
इसको उलट दे, दोनों चीजों को हाँ को ना, ना को हाँ करना है। यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, वहां था होगी, यहां कह दिया नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, यहां आप कह रहे हैं कि जाऊंगा। तो इसी तरह से इसको इन्वर्स करते हैं स्टेटमेंट को, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी। दिस इज द वे वी डू इट। आई होप इट इज वेरी क्लियर हाउ वी इन्वर्स और हाउ वी कैन राइट द विरोध कथन ऑफ एनी स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? इसके बाद देखेंगे हम लोग कन्वर्जन और कन्वर्स स्टेटमेंट। कन्वर्स करना, हाउ वी कन्वर्स द स्टेटमेंट, और इसको हिंदी में विलोम कथन कहते हैं। लेट्स सी कन्वर्स। कन्वर्स स्टेटमेंट, इसको हम लोग हिंदी में विलोम कथन कहते हैं। विलोम कथन। उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपकी बातें नहीं समझ आ रही हैं, और अच्छा समझ में आता है तो ये भी लिख सकते हैं कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है। एनीवेज, तो कन्वर्स ये विलोम कथन को कैसे करते हैं, वी हैव ऑलरेडी मेंशन। तो स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं कैसे होता है। इफ पी देन क्यू, इसी पैटर्न में चल रहा है। इफ पी देन क्यू, इस ये भी हम बता चुके हैं कि ये डिफरेंट हो जाएगा इफ क्यू देन पी से। तो ऐसे ऐसे करते हैं। द स्टेटमेंट पी क्यू इज द कन्वर्स ऑफ द विलोम। तो अगर इफ पी देन क्यू, इसका विलोम हो जाएगा इफ क्यू देन पी। लेट्स सी, पहली बार हम लोगों ने लिखा था कि विलोम जो स्टेटमेंट होता है वो इस पैटर्न पे होता है इफ पी देन क्यू, लेकिन अभी हम लोग इसको जब इसका विलोम करेंगे, जब इसको कन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा इफ क्यू देन पी। लेट्स सी, एक स्टेटमेंट देखते हैं। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसको आप पी सिंगल एरो से क्यू लिख सकते हैं या पी डबल एरो से भी क्यू लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप क्यू सिंगल एरो से पी लिख सकते हैं और क्यू डबल एरो से भी पी लिख सकते हैं। बोथ आर सेम, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। तो अब एक सेंटेंस लेते हैं। इफ x इज डिवाइडेड बाय 4 देन x इज इवन। सिंपल एक स्टेटमेंट है। इफ x इज डिवाइडेड बाय 4, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में ये सब चीजें। इफ x इज डिवाइड बाय 4 देन x इज इवन। इसको हम लोग उलट देंगे। इफ x इज इवन, द x इज डिविजिबल बाय 4। सेंटेंस सुनिए। इफ x इज डिवाइडेड बाय 4 देन x इज इवन। इसका जस्ट विलोम या इसका इनवर्स कर देंगे, कन्वर्स कर देंगे। इफ x इज इवन, द x इज डिविजिबल बाय 4। आपने देखा कितना आसान। इसको मैं लिख के दिखाता हूं तो आपको इसको उलट देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। पहले ही बता दिया था वीडियो में शुरू में, आपको याद होगा। तो अभी कन्वर्स जब करेंगे स्टेटमेंट का, विलोम कथन लिखेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे इफ क्यू देन पी। और अगर ऐसा करते हैं तो सेंटेंस बिल्कुल उलट जाएगा, और इसी को कन्वर्स स्टेटमेंट या विलोम कथन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ x इज डिविजिबल, सपोज इफ x इज डिविजिबल बाय 4 देन x इज इवन। एक सेंटेंस है। इफ x इज डिविजिबल बाय 4 देन x इज इवन। ये सेंटेंस है, ये है इस पैटर्न पे है, ये पी क्यू के पैटर्न पे है। इसका कन्वर्स करना है या इसका विलोम करना है तो हम लोग लिखेंगे इफ द सेंटेंस इज इफ x इज डिविजिबल बाय 4 देन x इज इवन। इसको हम लोग कन्वर्स करके लिखेंगे इफ x इज इवन। इफ x इज इवन देन it is divisible by 4. See, if x is divisible by 4 then x is even. अब हो गया ये q then x q p के पैटर्न पे। if x is even then it is divisible by 4। ये इस सेंटेंस का कन्वर्स स्टेटमेंट या इस कथन का विलोम कथन हो गया। दिस इज द वे वी कन्वर्ट। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। यदि वर्षा होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होती है, नेचुरली कोई भी नहीं जाएगा, आप भी नहीं जाएंगे। अगर बारिश हो रही तो आप बाहर नहीं जाना चाहेंगे। तो एक सेंटेंस है, यदि या एक कथन है, हिंदी में ले रहे हैं। यदि वर्षा होती है, होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। एक बार है होगी, दूसरा है नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे यदि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो वर्षा होगी। पहली बार में कहा जा रहा है यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और इसका विलोम कर दिया यदि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो वर्षा होगी। ये इसका
जस्ट उल्टा या इसका जस्ट कन्वर्स या इसका जस्ट विलोम हो गया। इस तरह से सेंटेंस को जब बदलते हैं, इफ पी देन क्यू का पैटर्न बदल के इफ क्यू देन पी करते हैं तो इसको इनवर्स कन्वर्स स्टेटमेंट या विलोम कथन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और इसका थर्ड और आखिरी पार्ट था कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, प्रति धनात्मक कथन। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, प्रति धनात्मक कथन। यह है प्रति धनात्मक कथन। इसमें दोनों चीजें बदल जाएंगी। हम लोग देख चुके हैं इफ P देन Q, इफ P देन Q, इसमें दोनों बदल जाएगा। निगेशन ऑफ Q, इफ निगेशन ऑफ Q देन निगेशन ऑफ P। इस पैटर्न में जब आ जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट का दोनों पार्ट भी नेगेटिव होगा और उसकी पोजीशन भी बदलेगी। पहले P Q था, ये ऐसे नहीं हो रहा है कि P Q, बल्कि ये ऐसे हो रहा है negation of Q, not negation of P and negation of Q, rather negation of Q then negation of P, if negation of Q then negation of P। दिस पैटर्न को अगर ऐसा पैटर्न होता है तो हम लोग इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। हम लोग स्टेटमेंट लेके देखेंगे। सो यदि P तो Q का प्रतिधात्मक कथन होगा, यदि Q नहीं, यदि P तो Q। लिख रहे हैं हम लोग, देखिए आप अच्छे से, यदि P तो Q, ये पैटर्न पे चल रहे थे। अब इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा या प्रतिधनात्मक कथन जो होगा, यदि Q नहीं, ये वाला पार्ट, यदि Q नहीं तो P नहीं। देखिए ये वाला पार्ट ऐसा नहीं लिख रहा कि यदि P नहीं तो Q नहीं। यदि P नहीं, यदि पहले ये आ जाएगा, यदि Q नहीं, पैटर्न है ये, उसका निगेशन ऐसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि यदि Q नहीं तो P नहीं। यदि P तो Q के पैटर्न को बदल रहे हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए या प्रतिधनात्मक कथन बनाने के लिए, तो इसमें कह रहे हैं यदि Q नहीं तो P नहीं। आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग इट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और इसको इस तरह के स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं, यदि P नहीं तो Q नहीं। कुछ उदाहरण या कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस पढ़ते हैं हम। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। एक सेंटेंस है, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर बनाएंगे, देख हम इसको लिख के दिखाते हैं आपको, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। if you are born in India, if you are born in India, simply if you are born in India, then you are, then you are the citizen of India. If you are born in India, then you are a citizen or the citizen, आ कर सकते हैं, you are a citizen of India। इसको, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है या प्रतिधनात्मक कथन इसका अगर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे इफ यू आर, दोनों को निगेटिव कर देंगे। इफ यू आर, पहले क्यू आएगा, क्यू पार्ट ये वाला है। इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन you were not born in India. You see the difference. If you are born in India, then you are a citizen of India को कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाने के लिए या प्रतिधनात्मक कथन बनाने के लिए क्या किया? If you are not a citizen of India, first this part we have written. If you are not, means क्या, negation of this Q part, ये P part है, ये Q part है, ये दोनों ये जुड़ रहा है then से। So if you are not a citizen of India, then you were not born in India। अगर इस सेंटेंस को ऐसे बदल देते हैं तो इसको इस सेंटेंस का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट या प्रतिधनात्मक कथन कहते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं हिंदी में, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सेम सेंटेंस,
यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इसका निगेशन हो जाएगा। यदि मैं बाहर जाऊंगा तो वर्षा नहीं होगी। देखिए आप कैसे क्या किया गया है इसमें, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसको, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो लिखेंगे नहीं, यदि मैं बाहर जाऊंगा, इसे क्या लिखा हुआ, नहीं जाऊंगा, इसका उल्टा कर देना है। जाऊंगा तो यदि वर्षा होगी होगी तो यहां पे अब नहीं होगी हो जाए। यदि मैं बाहर जाऊंगा तो वर्षा नहीं होगी। आपने देखा दोनों सेंटेंस को उलट दिया है, लेकिन बाद वाले सेंटेंस को पहले लिखा है और पहले वाले सेंटेंस को बाद में लिखा है, बिकॉज वी हैव टू हैव कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। प्रतिधारात्मक स्टेटमेंट लिखने के लिए यही करते हैं कि बाद के सेंटेंस को पहले और उसको निगेट करते हैं, फिर पहले वाले सेंटेंस को उसके बाद में, फिर उसको निगेट करते हैं। यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इसको लिख दिया। यदि मैं बाहर जाऊंगा तो वर्षा नहीं होगी। यहां नहीं को जाऊंगा हाँ में बदला और होगी को नहीं होगी में बदला है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन सब के बाद एक लास्ट एक टॉपिक, या कहें कि इस टॉपिक का सबसे लास्ट सब टॉपिक जो है वो है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा अभी हम लोगों ने देखा इफ पी देन क्यू, इसका एक दूसरा लास्ट पैटर्न जो है वो है बाई कंडीशनल या द्विक सप्रतिबंध कथन। इसको हम लिखते हैं पहले, उसके बाद आपको समझा देंगे कि ये कैसे क्या करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम चीज़ें बदलेंगे। अगर आपको समझ आ रहा तो तब भी लिखिए, ताकि हम समझ पाए कि हाँ आप सारी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं। और ये बीए पार्ट 1 के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही काम का वीडियो है, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स वही डिस्कस किए जा रहे हैं जो उनके सिलेबस में है। तो आप अगर इसको वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप अपना एग्जाम अच्छे से लिख पाएंगे और आपको अच्छे से अपनी सब्जेक्ट पे कमांड भी आ जाएगा। एनीवे, सो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसको हिंदी में द्विक प्रतिबंध, दा यहां पे वा लगाइएगा, द्विक सप्रतिबंध कथन, सप्रतिबंध। बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, हिंदी में भी पढ़ना चाहिए और हिंदी में समझना भी चाहिए। लेकिन हिंदी में जब आप लिखें तो आपका श्रुति लेख या आपका जो प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग है वो एकदम सही होना चाहिए। ये दा में वाह है, द्विक सप्रतिबंध कथन, इसको इंग्लिश में बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये उसका जो पैटर्न था इफ पी देन क्यू, और इसका पैटर्न दूसरा है, इसका है इफ एंड ओनली इफ। इस पैटर्न पे चलता है ये सेंटेंस, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ वाले पैटर्न पे जो सेंटेंस होता है उसको बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये डिनोट होता है पी एरो क्यू से, या पी दोनों तरफ बंद करने क्यू से। ये दोनों तरीका है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को डिनोट करने का, पी दिस वे और पी दिस वे। सिंगल एरो, बट एरो में दोनों तरफ रहेगा, ये एरो और ये भी दोनों तरफ रहेगा अगर इस पैटर्न पे है। और इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और हिंदी में बोलते हैं यदि और केवल यदि। इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे सपोज पहला बताया आपको हमने, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, एक तो ये है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पहला पैटर्न है। उसके बाद इसको उलट देते हैं, दूसरा क्यू इफ एंड ओनली इफ पी। इसका एक और पैटर्न हो सकता है, P is a necessary and sufficient condition for Q. P is a necessary and sufficient condition for Q, एक और पैटर्न है। Then PQ, ऐसे लिखेंगे P Q and
QP, PQ एंड QP, और लास्ट में है P इज इक्विवेलेंट टू Q, P इज इक्विवेलेंट टू। ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं इस तरह के सेंटेंसेस के, आप आगे आएंगे तो देखेंगे, इसको हम लोग समझेंगे आगे जाके। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, अ नेचुरल नंबर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। एक सेंटेंस लिया हमने, अ नेचुरल नंबर n, and maybe any natural number, is odd if and only if it is not divisible by 2। एक और सेंटेंस लेते हैं, a rectangle is a square if and only if all its four sides are equal। ये भी एक सेंटेंस है, एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा जब उसके चारों साइड्स बराबर होंगे, लेकिन ये कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ। अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ all its sides are four sides are equal। और एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई त्रिभुज समबाहु होता है, समबाहु, कोई त्रिभुज समबाहु होता है यदि और केवल यदि ये समान कोणीय हो। तो ये जो सेंटेंस का पैटर्न होता है, इसको हम लोग बाई कंडीशनल स्टेटमेंट या द्विक सप्रतिबंध कथन कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट, अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट्स आते हैं तो और आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है कि यदि और केवल यदि अगर उसमें दिया रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है या द्विक सप्रतिबंध कथन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। कोई भी दिक्कत आई हो तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सेट थियरी या समुच्चय पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इससे समझिए और पढ़ने में वक्त लगाइए, दिल लगाइए और अच्छे से एग्जाम पास कीजिए। टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।